হাই গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক এগেইন। আজকে ব্লগটা একটু অন্যরকম, আজকে একটু লং ব্লগ টাইপসের হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা, বিকজ দিস ইজ দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম যে বগলপুরে একটু সুযোগ পেয়েছি আমরা বাইরে এক্সপ্লোর করার জন্য, দ্যাট টু অন এ সানডে। সো আমরা নাও অন দ্য ওয়ে টু মুঙ্গের। আমার কো কলিগ সৌরভ যেখানে এখান থেকে বিলং করে, সো দিস ইজ সৌরভ। We are heading towards Munger, and মুঙ্গেরে আমাদের একটা জিনিস দেখার জন্যই মেইনলি আমি যাচ্ছি। This is the hometown of Saurabh himself. তো সৌরভ better knows about things at মুঙ্গের, কোথায় কি আছে কি নেই। সো আমরা কারেন্টলি মুঙ্গেরে যাচ্ছি। মেইনলি আমাদের মেইন অ্যাট্রাকশন যেটা, সেটা মুঙ্গের ফোর্ট দেখা। আই ডোন্ট নো সেটা পসিবল হবে কিনা, বিকজ যদি ওটা আমার বাড়ির কাছে আছে দাদা। ওকে, জাস্ট 1 কিলোমিটার। সো দেখা যাক, সি ইউ। সো এই গাইজ, আমরা প্রথম ব্রেক নিয়েছি, যেমনটা দেখতে পাচ্ছ মা গঙ্গা লাইন হোটেলে আমরা ব্রেক নিয়েছি। এখন হবে এখানে আমাদের লাঞ্চ। লাইটটা এই দিক থেকে ঠিক আছে। এখন এখানে আমাদের লাঞ্চ হবে, আর লাঞ্চ করে তারপরে আমরা আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশনে যাবো। অ্যাকচুয়ালি আমরা শুরুটা খুব দেরি করে করেছি, মানে একটার সময় জার্নি শুরু করলে যা হয়, লাঞ্চের ইয়েটা আমরা পাবো না পরে গিয়ে। সো লাঞ্চটা কমপ্লিট করি, দেখি এখানে কী কী পাওয়া যাচ্ছে। লেটস গো। তো গাইজ, লাফড়া হয়ে গেছে আমাদের সাথে। আমরা খাবার অর্ডার করেছিলাম দুজনের জন্য। আনফর্চুনেটলি দাদা মনে করেছে একাই খাবে, আরেকজন বসে থাকবে। তো এক প্লেট খাবার দিয়ে গেছে, বলছে পরে রুটি তৈরি হতে নাকি এখনও সময় লাগবে। সো এখানে 4টে রুটি আছে। বেসিক্যালি কী করি, আমরা দুটো করে খেয়ে নিই, এখান থেকে বিদায় হই, কারণ ইটস অলরেডি 1:30। আমাদের মুঙ্গের পৌঁছাতে এখন মিনিমাম 1 ঘন্টা তো লাগবেই। হ্যাঁ, অলমোস্ট। তো এই 2টো রুটি খেয়ে আমরা পালাই এখান, তারপরে দেখা যাবে রাস্তায়। বাই। তো গাইজ, খাওয়া শুরুতে চা, শেষে চা, একদম চা প্রিয় বাঙালি আমরা। তো যাই হোক, যেমনটা দেখলে রুটি নিয়ে লাফড়া হওয়ার পর আমরা ফাইনালি চা খেয়ে আর কি এখন রওনা দিচ্ছি এখান থেকে। যেমনটা বললাম 1 ঘন্টার মতো লাগবে। সো পৌঁছে তারপরে মুঙ্গের শহর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। সো গাইজ, ক্যান ইউ সি গঙ্গা মা and also the mountain nearby. ओके, सो हम लोग बहुत करीब से जा रहे हैं गंगा माता के, है ना। एंड द रोड इज़ गुड हेयर, बट पीछे बहुत ट्रैफिक मिल गया था हम लोगों को, एंड दैट्स वाई वी आर एटलीस्ट 45 मिनट्स लेट टिल नाउ। हम ट्रैफिक का कोई ऑब्वियसली वीडियो नहीं कर पाए, क्योंकि दिमाग का दही पापड़ एक हो गया था सारे। बट द रोड कंडीशन आफ्टर सुल्तानगंज इज़ वेरी गुड। थोड़ा दिखाओ रोड इनको, है ना। एंड रोड इज़ ऑल्सो थोड़ा खाली भी है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रहा है सच। बाकी आई थिंक सौरभ 40-45 मिनट्स लगेगा और पहुंचने में। या श्योर दादा। तो लेट्स सी, हम पहुंचते हैं। एंड मे बी देयर इज़ अ चेंज ऑफ प्लान, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। आई एम नॉट श्योर कि हम आज रिटर्न आ पाएंगे कि नहीं, बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि कल आके हमको ऑफिस भी करना है। सो आई एम नॉट श्योर कि हम आज स्टे कर पाएंगे कि नहीं। इवन इट इज़ लेट नाइट, हमको शायद वापस आना पड़ेगा। सो लेट्स सी, वीडियो के साथ जुड़े रहिए आप लोग, है ना। देखते क्या होता है इसके बाद। थैंक यू। So guys, finally after 3 long hours we are at मुंगेर। ठीक है, बीच में एक जगह में पुलिस चेकिंग भी हुआ था। अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ बिहार इलेक्शन जो 6 तारीख यानी 11 तारीख को है, 2 फेज़ में। इफ़ यू डोंट नो, शेयर किया हम लोगों ने, तो इसलिए गाड़ी चेकिंग हो रहा था। एंड ऑब्वियसली बात है, हम सीधे साधे लड़के हैं भाई, क्या ही मिलेगा। लेकिन एक चीज़ अच्छा नहीं लगा, हम सौरभ के एरिया में हैं, सौरभ ने आते हुए पुलिस चेकिंग करवा दिया मेरा। ठीक है, मे बी ही इज़ नॉट फीलिंग सेफ। ऐसा है क्या सौरभ? नहीं। ठीक है, जो भी है, अभी शायद सौरभ के आसपास, घर के आसपास पहुंचने में और 10 मिनट लगेगा। एंड देन हम जाएंगे मुंगेर फोर्ट, एंड सौरभ को जो लगे आसपास का जो दिखा सकते हैं। चलो मिलते हैं, क्या नए लोग उसे बताएंगे, एंड आप लोग तो देखेंगे। সো গাইজ, এখানে পার্কিং করেছি আমরা সৌরভের বাড়ির আশপাশে, আর এখান থেকে আমরা যাচ্ছি এখন মুঙ্গের ফোর্টের উদ্দেশ্যে।
এখানে চেনা জানা অনেক জায়গা আছে, বাট লেটস সি মানে কতটা কি ঘুরতে পারি, অন্ধকার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি। ये हम लोग किला के नज़दीक आ गए हैं। अच्छा अच्छा, ये कोई मंदिर है? नहीं, ये एक पहले मंदिर था, ये पहले हाँ। जो मारवाड़ी लोग यहाँ पे आके बहुत कभी कुछ खिलाते हैं गरीब लोगों को, यही खिलाते अच्छा अच्छा, हैं। अंदर हम आपको धीरे धीरे ले जाएंगे। कोर्ट है, डीएम ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, डीएसपी ऑफिस है, डीआईजी ऑफिस है, सारा कुछ यही है। ओके, मतलब ये सरकारी जोन हो गया पूरा, है ना? तो पूरा सरकारी, ये देखिए ये डीआईजी आवास हो गया आपका। ओके ओके ओके, ये हो गया आपका मुंगेर शहर का सबसे बड़ा फील्ड, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पोलो फील्ड। पोलो फील्ड, पोलो फील्ड, अच्छा अच्छा। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये बसेस लगा हुआ है, हाँ। तो इलेक्शन के टाइम तक ऐसे ही क्राउडेड रहेगा। अच्छा अच्छा, ये अभी हम आपको ले जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के ले जाएंगे हम आपको कंपनी गार्डन। कंपनी गार्डन, कंपनी गार्डन, ये पार्क का नाम है। ओके। तो ये पार्क है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक यहाँ पे आते हैं। हाँ, 55 से लेकर 55 तक का आदमी यहाँ पे आता है, देख सकते हैं आप। और ये एक तरह समझ लीजिए आपका चाइल्ड जोन हो गया। ओके, चाइल्ड जोन। चाइल्ड जोन, और आगे यहाँ पे कपल्स लोग बैठते हैं थोड़ा सा। वो तो हर जगह में बैठेंगे भाई। ये देखिए यहाँ पे ये हाँ, दिस इज बेसिकली कपल्स जोन। हाँ, बढ़ेंगे तो हम आपको ले जाएंगे योगा आश्रम, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा योगा का आश्रम। हाँ, हाँ, माई वर्ड, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा योगा का आश्रम। बाप रे, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा आश्रम, योगा का आश्रम जो है, हम अभी उधर जा रहे हैं। ये सामने से आप देख सकते हैं। ये कौन सा तालाब है? ये आपका गार्डन का ही एक पार्ट है जहाँ पे नाव चलता है। ओके, सो बेसिकली बोटिंग सर्विस इधर अवेलेबल है। ये एक और किला है जो हम लोग लाल दरवाजा इसको कहते हैं, लाल दरवाजा। लाल दरवाजा, ओके, ग्रेट। ये अभी हम लोग जा रहे हैं योगा आश्रम के सामने। हाँ हाँ, ये देख सकते हैं पार्ट है यहाँ का, एंड बाकी आपका और भी पार्ट्स है, मैं आपको ले जा रहा हूँ। ये सारा योगाश्रम का ही पार्ट है, आप देख पाओगे। सच ए नाइसली बिल्ड प्लेस, मतलब योगा करके ना आदमी को सुकून मिलता है, राइट? सो ये एरिया भी ऐसे ही बना हुआ है एग्जैक्टली कि मतलब आप नॉर्मली भी आएंगे तो सुकून होता है, मतलब इतना ग्रीनरी मेरे को नहीं लगता कहीं और इतना आसानी से दिखने को मिलता है। हिस्टोरिकली कुछ जगह बहुत फेमस होता है, मतलब जैसे कि कुछ नाम शायद अब नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर वो उसको जगह का हिस्ट्री आप देखेंगे वो बहुत रिच होता है। एंड दैट पर्टिकुलर थिंग हैपेंड विद मुंगेर। मुंगेर का बारे में लोग बाहर से कितने, आई डोंट नो, नॉर्मल लोगों को कितना पता होगा मुंगेर के बारे में, बट वंस यू कम हेयर इन मुंगेर विद ए लोकल गाय जस्ट लाइक मी एंड सौरव, एंड देन यू गेट टू नो कि मुंगेर में क्या है एंड क्या नहीं ये है। जो आप सारो फैंटास्टिक व्यू, हाँ। इट्स बेसिकली कॉल्ड सर्किट हाउस। यहाँ पे जैसे वीवीआईपी आते हैं, हाँ। क्योंकि ये एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा योगा का आश्रम है। हाँ। तो वीआईपीज बेसिकली यहाँ आते रहते हैं, तो उनका ये गेस्ट हाउस है। ओके, गेस्ट हाउस है, यहाँ पे पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज सब लोग आके रहते हैं। ये गेट नंबर 2 Okay. है, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। so this is basically another part of that योगा particular building, योगाश्रम का। और अभी जो मैं आपको ले जा रहा हूँ, हाँ, ये है आपका, ये योगाश्रम का ही पार्ट है। ओके, ये आपका बंदूक फैक्ट्री भी था पहले, ओके। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, जैसे कि ये बोल रहा है, ये बिल्डिंग था ना? ये बिल्डिंग आपका हाँ। पहले था, लेकिन अभी योगाश्रम का ये पार्ट बना दिया, आप देख सकते ठीक है। हैं। सो ये जो बिल्डिंग है आप देख सकते हैं, आई डोंट नो, इधर वीडियो करना इतना अलाउड नहीं है,
जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड, बट अकॉर्डिंग टू सौरभ ये एक टाइम पे हमारा गन वगैरह वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जितने भी दैट यूज टू गेट बिल्ड हेयर, मतलब समझिए बात को। मतलब दिस इज दिस इज ह्यूज इसको एक्चुअली योगा के लिए इसको कन्वर्ट किया गया है। एंड वेरी नाइस आई एम रियली इम्प्रेस्ड। कमर्शियल प्लेस जहाँ शॉप्स है, ठीक है, आप बाकी चीज़ बाहर से अगर कोई आ रहे हैं तो वो लोग इधर से डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। एंड मे बी दिस वन ऑल्सो द प्लेस वेर यू कैन बाई एनीथिंग इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। सो ओवरऑल आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मतलब हम जब बस 10 ही मिनट हुआ है, बट वी हैव गॉन थ्रू सम हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड इतना कम टाइम में, इतने कम जगह में, मेरे को नहीं लगता है, मेरे को भागलपुर में फ्रॉम वेयर आई एम करेंटली पोस्टेड इधर इतना कुछ मिल नहीं सकता था मेरे को। दिस इज ऑल्सो विच इज कॉल्ड बागबान। ओके, दिस इज बागबान गार्डन एज यू कैन सी। एक बागबान रेस्टोरेंट भी है। ओके, बागबान रेस्टोरेंट है। अनफॉर्चुनेटली शायद आज हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे एंड डेफिनेटली मेरा नेक्स्ट जब विजिट होगा मुंगेर में आई विल डेफिनेटली ट्राई इट आउट। बट लुक एट दिस यार, मतलब एक अलग ही सुकून मिल रहा है इधर का हवा में है। आई मीन आप इजीली फील कर सकते हैं। मतलब इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम ए मेट्रो सिटी, इफ़ यू हैव बीन इन मेट्रो सिटी, you know the kind of pollution that you go through every day. But when you come to these particular places ना, you get the feel कि यार हवा कितना मतलब कीमती चीज़ होता है जो हमको नॉर्मली नहीं मिलता है मेट्रोस में। मे बी बिकॉज ऑफ ओवर डेवलपमेंट इफ यू विल से, बट दिस इज़ टू आवर्स मैं बोलूँगा, 2 आवर्स ड्राइव from Bhagalpur, but this place is historically very rich. Currently we are going to what place? Currently we are going जहाँ पे मुंगेर शहर का सबसे ज़्यादा क्राउड लगता है छठ पूजा में, बाबुआ घाट। Okay. So currently we are moving to Babua Ghat, which is very renowned for छठ पूजा एक्टिविटीज़। जैसे कि हमने आपको दिखाया था इन भागलपुर, बेसिकली इन माई शॉर्ट्स, एक्चुअली यूट्यूब शॉर्ट्स पे कि कैसा सेलिब्रेट किए थे हम लोग भागलपुर में। सो नाउ वी आर गोइंग टू मुंगेर्स, वन ऑफ द बिगेस्ट घाट पे, बाबुआ घाट में। डोंट गेट इट रॉन्ग, बाबू घाट है कलकत्ता में, दिस इज बाबुआ घाट हेयर इन मुंगेर, बिहार। सो करेंटली वी आर मूविंग टू दैट। सुंदर तरीके से सजाया हुआ है एंड नॉट एट ऑल कॉन्जेस्टेड। मतलब इतना जगह तो ये क्या है, ये कौन सा बिल्डिंग है? ओके, दिस इज DIG's बिल्डिंग। इट्स बेटर नॉट टू कैप्चर देम, केस लग जाएगा भाई। हाँ, जो मैं बोल रहा था एक्चुअली हिस्टोरिकली बहुत रिच है एंड इसके साथ साथ सारे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का ऑफिस वगैरह है वो एक हिस्से में है। ऐसा नहीं कि शहर के बीच में ही खड़ा कर दिया उसको। दिस इज़ वेरी वेल प्लान्ड। हाँ, एंड बाबुआ घाट में हम आ चुके हैं। इसका नज़ारा एंड आप देख सकते हैं कि छठ के टाइम पे आई कैन ओनली इमेजिन कि कितना भीड़ हुआ होगा इधर। पैर रखने का जगह नहीं। हाँ, पैर रखने की जगह नहीं था एज पर आवर लोकल गाय सौरभ। एंड गंगा का दर्शन यहाँ से हो जाएगा। सो लेट्स एंजॉय सम सिनेमैटिक शॉट्स। हाँ, उसके बाद वन ऑफ द सरप्राइजिंग थिंग दैट यू फ्रॉम हियर, वो जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रहा है, एकदम सामने दिखे मंदिर जैसा। राइट। वहाँ पे वहाँ पे अभी भी सीता जी का लाइव चरण का आपको छाप मिलेगा। वाह, आई नो इधर थोड़ा ब्लरी दिख रहा है आप लोगों को, बट जस्ट लाइक सौरभ सेड ना अबाउट मुंगेर दैट वी आर कवरिंग टुडे, एंड एज वन ऑफ एज सौरभ सेड, लुक एट दिस सीनरी। आई डोंट नो हाउ द कैमरा इज कैप्चरिंग इट। लुक एट द एस्थेटिक ऑफ दिस प्लेस। Okay, so this is basically the Ganga Ghat. As you can see, इधर गंगा माँ के पूजा के लिए लोग, घूमने के लिए लोग आते हैं एंड दिस इज द ओवरऑल एटमॉस्फेयर हियर। दिस घाट इज वन ऑफ द वेल मेंटेन्ड घाट। हाँ, मैं वही बोलने वाला था। दिस इज पॉपुलर फॉर द छठ घाट। यू कैन आई थिंक यू हैव विजिटेड मल्टीपल घाट, बट दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस यू हैव no. This particular thing I was about to mention, I have been there in 2 ghats during Chhat Puja in Bhagalpur,
बट अनफॉर्चुनेटली वो इतना वेल मेंटेन नहीं था. बट दिस थिंग, Winter has painted हाँ. recently before Chhath Puja. yeah, this thing has been done before Chhath Puja, and look at this scenery, man. This is what public demands: a cleaner ghat and cleaner Ganga, and people are enjoying. People are Because taking. today is a Ekadashi, so people हाँ, are not taking. today's Ekadashi, so people are taking the holy bath, holy Ganga bath, and overall the scenery majestic. I mean, look at this from behind. It's the Ganga Ma, and me and Saurabh are visiting here, and thanks to Saurabh, क्योंकि Always welcome, Dada. एक्सेप्ट लोकल गाय ना इतना अच्छे से कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता है चीज़ों को. सो बिग थैंक्स. बाकी हम कहाँ नेक्स्ट कहाँ प्लान है हमारा? नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं कष्टहरनी घाट, और वहाँ का एक बहुत अच्छा कहानी है रामायण का कि जब राम जी राक्षस को मारते मारते थक गए थे, तब वो एक ऋषि मुनि से गाइड लिए थे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मन बहुत ही प्रदूषित हो चुका है. Okay. तो राम जी को उस ऋषि ने एक गाइडेंस दिया था, उनको बताया था कि मुंगेर नाम का जगह पे एक कष्टहरनी घाट है, वहाँ पे तुम जाओ और स्नान करो. तो वहाँ पे नहाते ही, स्नान करते ही तुम्हारा जितना भी कष्ट है वो सारे वो गंगा माता हर लेंगी. तो यहाँ पे जिस घाट में भी हम लोग जाने वाले हैं, उस घाट में राम जी ने स्नान किया था, बात लिया था. ओके, तो चलते हैं हम लोग, आइए. चलिए. मतलब अंधेरा होने वाला है, सो बिफोर दैट वी नीड टू मूव टू दैट पर्टिकुलर ये प्लेस. बेसिकली वी आर डन विद द विजिट. Next we are moving on to the ghat that Saurabh just mentioned. We were just clicking some photos. Photo ले लिया हम लोगों ने, and now we are moving to Kashtharani Ghat, and the history has been beautifully explained by Saurabh. So I don't think कि मेरे को और कुछ बोलने की ज़रूरत है. So let's move to the next ghat. So this is basically the Kashtharani Ghat. जिसके बारे में आप लोगों ने अभी सुना. अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा लॉक है, हम अंदर नहीं जा पाएंगे. ओके, हाँ, इस साइड से खुला हुआ है. ओके, लेट्स सी, लेट्स क्लिक अ फोटो ऑफ इट. आइए. ये है मुंगेर ब्रिज जो बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया को कनेक्ट करता है. And people are also here taking the holy bath, as you can see. Beautiful ghat, beautiful ghat here. Scenario, मतलब ये फोटोजेनिक भी है मुंगेर में. I mean, I'm not a एक्चुअली क्या Typical हुआ कि photographer. एक्चुअली वो आरओ के वजह से हम लोग का लेट हो Right, गया. right. नहीं तो बहुत सारा हिस्टोरिकल प्लेस एंड बहुत सारे सीनरीज ऐसा है हाँ, हाँ. कि जहाँ पे बहुत अच्छा फोटोज आता है. फॉर एग्जांपल अभी जमालपुर का एक पहाड़, ये काली पहाड़ है. Okay. बहुत ही अच्छा जगह है, वो आपको घुमाना ही. अनफॉर्चुनेटली आज हमारा घर पे कुछ काम था जो अनअवॉइडेबल था, इसलिए हमारा लेट हो गया है थोड़ा. बट इफ़ यू सी ना, दिस थिंग्स आर वेरी फोटोजेनिक. मतलब अगर कोई फोटोग्राफर है जो थोड़ा एस्थेटिक फ़ोटो खींचना चाहता है, he or she can definitely come to these places. If anyone is interested in boat rides, so he or she can definitely try this. जैसे कि शाम का टाइम है, सो आरती इज़ गोइंग ऑन. एंड हम नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं? हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं, यहाँ का फेमस एक टूरिस्ट प्लेस है मछली तालाब. ओके, मछली तालाब में. हाँ. ठीक है, चलिए उधर मिलते हैं. ऑल्सो अ पार्क, बट ये जो आप देख रहे हो ये एक मीफा है. ओके, ठीक है. ये आपको यहाँ से लेके पटना का एक डकरा नाला है, ओके. वहाँ से कनेक्ट होता है. ये जब अंग्रेजों ने मीर कासिम को खदेड़ा था पकड़ने के लिए, तो मीर कासिम यही गुफा के थ्रू भाग के डायरेक्ट डकरा नाला पटना के पास निकले थे. तो अभी तो ये बंद हो गया होगा ना? अभी कारणों से बहुत लोग मर रहे थे, तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने इसको ब्लॉक. ओके. तो जैसे बोला जाता है कि मीर कासिम ने इधर से लेके पटना तक, पटना का डकरा नाला, पटना का डकरा नाला, हाँ. तो उधर तक टनल्स कहते हैं, उन्होंने उस टाइम पे टनल बनाया था.
सो भाई पुराने लोगों में अलग ही बात होता है. एंड दिस इज़ वेरी हिस्टोरिकली फेमस. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द हिस्ट्री. आई डोंट नो, मे बी हिस्ट्री से कोई बिलोंग करता है जो मेरे वीडियो देखता हो. बट मतलब इधर से लेकर पटना तक विच इज़ अराउंड 160 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर. ये पूरा नाला बनाना मतलब टनल बनाना आम बात नहीं है, वो भी मतलब कितने सालों पहले. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. सो गाइज अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट जस्ट सौरभ मेंशन्ड कि हम अभी जिस एरिया से जा रहे हैं, बिकॉज ये गंगा के बहुत किनारे पे है. गंगा इज जस्ट आई मीन हम बंगाली में कहते हैं कि ढील छोड़ा दूरत्व, माने इतना पास है कि आप कोई ये भी पत्थर भी मारेंगे तो जाके गंगा में गिरेगा. ठीक है, इतना डिस्टेंस पे है. एंड पीपल हेयर फील्स लाइक दे आर इन शिमला एंड मनाली. मतलब टेम्परेचर इतना गिर जाता है 4 to 5 डिग्रीज एज मेंशन बाय सौरभ. आई मीन 4 to 5 डिग्रीज टेम्परेचर में और आई मीन गंगा किनारे है तो हवा तो आएगा ही आएगा. आई मीन आई कैन ओनली ये एक और किला है जिसको कि लाल दरवाजा कहते हैं. ओके, दिस इज अनदर किला. इसका नाम क्या है? लाल दरवाजा. ओके, there are some instructions that has been written there. Okay. Oh wow. ये चारों तरफ तालाब है, बीच में शिव जी का मंदिर है. So guys, as you can see, this is Machli Talab, and I don't need to explain what Machli is. Being a Bengali, I only can relate very highly. So jokes apart, these things is very famous here in Munger, and people visitors, as you can see, they are gathering here and they are feeding the fishes over here. And yeah, these amount of fishes are here. So overall this place is 10 on 10. I mean look at the beauty of this place. ये क्या है? ये दाना है, मछली को खिलाना, मछली ऊपर आता है. Okay. So another interesting thing Saurav just mentioned कि I think outside foods are not allowed here, right? No. Okay. As mentioned by Saurav, outside foods is not allowed here. You cannot feed the fishes outside foods. So हमको गेट से कुछ दिया गया है जो हम मछली को खिला सकते हैं. आई एम जस्ट शोइंग यू दैट. चलो बेटा, चलो. Okay, these has been given to us from the authorities that we can feed the मछलीस. आप देख सकते हैं. थोड़ा और दूर फेंकना पड़ेगा इसको. ओह माय गॉड, ये लोग पूरा ऊपर आ रहे हैं भाई. बेसिकली दिस इज छत्तू ना? सत्तू एंड आटा मिक्स. छत्तू एंड आटा का मिक्सचर है जो हम मछली को दे रहे हैं. ओह गॉड, लुक एट दिस. आई मीन कितना हजार मछली होगा भाई इतने जगह में. एंड नॉट ओनली दैट, इधर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं, मेरे को नहीं पता. एज यू कैन सी छोटे मछली भी है इधर. दे आर ऑल्सो एंजॉइंग देयर पार्ट. आई मीन ओवरऑल दिस प्लेस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. शाम के टाइम पे इधर बहुत क्राउड्स है, एज यू कैन सी.
बट दिस इज़ अ प्लेस जहाँ हमारे सौरभ प्री वेडिंग शूट के लिए भी आएगा, ठीक है। एंड मतलब इतना करीब से मछली को देखने को मिल रहा है, आप देखिए। ओह गॉड, ये देखो। अब हम घर जाएंगे बिकॉज शाम हो गया है एंड बाकी हमको वापस भी जाना है भागलपुर। सो बाकी अभी सौरभ के पेरेंट्स से मिलेंगे हम लोग जाके, उनसे भी बात करनी है। एंड सौरभ बीइंग द लोकल गाय, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अस अराउंड एंड जो जगह हमको आपने दिखाया। एंड मे बी अगर टाइम हमको मिलता तो और कुछ देखने को मिलता हम लोगों को, बट ठीक है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट बार आरो ख़राब ना हो जाए, बस जल्दी पहुंच जाएंगे हम लोग। टिल देन बाय। अरे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये क्या किसका सब्जी है? बट ये हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना, परवल को क्या बोलते हैं? परवल, हाँ, पटल, हाँ, पटल का सब्जी है। ये पनीर है, रोटी, ठीक है। সো গাইজ এখন বাজে রাত 9:20। যেমনটা দেখতে পাচ্ছ পুরো অন্ধকার, রাস্তা ফাঁকা। আমি আর সৌরভ চলেছি ফাইনালি ভাগলপুরের দিকে। আজকের ভিজিটটা বলবো বেশ ভালোই ছিল। মানে আমি এক্সপেক্ট করিনি আসলে যে ভাগলপুরের বাইরে এসেও মুঙ্গের এতটা ডেভেলপড অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এত হিস্টোরিক্যাল হবে। আমি আগে সৌরভের থেকে অনেক শুনেছি যে মুঙ্গের ইজ এ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बट फाइनली आई हैड द अपॉर्चुनिटी कि सौरभ ने मेरे को बुलाया घर पे एंड वी हैड ए ग्रेट टाइम। एंड दो यू हैव सीन कि मैंने क्या क्या खाया है, आई डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू द फूड बिकॉज घर का माहौल है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। बट होममेड फूड इज ऑलवेज बेस्ट, आई एम अगेन सेइंग दैट। बहुत अच्छा था खाना, स्पेशली द पनीर वाज सो गुड। And but since today is Ekadashi, as I have mentioned earlier in this video while being in the ghat, so I missed couple of things, especially the mutton. Uncle was saying that, so I'll be definitely coming back, Saurabh. always to Dada. Munger. And at last but not least, Saurabh will be saying something and we'll be ending this video here. Saurabh, if you wish to say something towards you and tell something. Yeah, so hello guys, it was a very good day with my senior SSO sir, and we call also Dada. So hope you all guys like the video, and I think that and I will have some expectation that you will like and follow the channels. And ऐसे वीडियो आता रहेगा because we both are bachelors. We have nothing to do on Sundays. We don't have wives, we don't have children and all. So ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बना रही है एंड डेली शॉर्ट्स तो आता ही रहता है चैनल पे। फॉर दैट ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द बेल आइकन बिकॉज देन यू विल नॉट मिस एनी अपडेट्स ऑन दिस। Okay, so good night to all of you. Good night. See you soon. Yeah, And bye. hope you all the best.